गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट कर लें। चलो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेटा। सी द फर्स्ट प्रॉब्लम राइट नाउ हियर, एवरीवन सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सी फॉर एग्जांपल, I got a meter washer. A meter washer has a hole of diameter d1 and external diameter d2, where d2 is 4 times of d1. On heating d2 increases by 0.5%, then d1 will first option decreases by 0.5%, number 2 decreases by 2%, third one is increases by 0.5%, number D increases by 2%. So what will be the answer? A meter washer has a hole of diameter d1 and external diameter of d2, where d2 is 4 times of d1 beta. On heating d2 increases by how much? 0.5%. Then d will increase or decrease by how much percent is asking. मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीजेस लिखवाया था, नोट भी लिखवाया था, देख लो एक बार जल्दी से। थर्मल एक्सपेंशन की सेकंड क्लास में मैंने आप लोग को परसेंटेजेस के ऊपर फॉर्मूलास लिखाया था और उसका डिपेंडेंस भी बताया था, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे इंडिपेंडेंट होगा बोल के। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये लिखाया था ना। परसेंटेज में लिखना है तो 100 भी मल्टीप्लाई कर लोगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू योर 100 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। और ये क्या दिखा, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दे रखा है, तो आई कैन राइट दिस वन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बिकॉज डायमीटर एंड द लेंथ आर द हैविंग द सेम डायमेंशंस, सो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर dl divided by your l into your 100 is equals to alpha into your dt into your 100. अब देखो delta t by your d, sorry, delta t by d, that means this is the percentage change in the diameter. percentage change in diameter किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, or it is depending upon the temperature difference. Is it clear? Yes sir. What will be your writing? You will be writing the answer for this one. Anyone? A meter washer has a hole of diameter d1 and external diameter d2, where d2 is 4 times of d1, yani diameter of final diameter is 4 times the initial diameter. So on heating d2 is being increases by 0.5%, then d1 will happens what? See,
diameter increase or decrease will depend on alpha and temperature difference. It is not depending upon the initial diameter. So I can say here right now, percentage increase does not depend, percentage increase does not depend on original length, does not depend upon your original length. तो क्या हो जाएगा जब आंसर क्या लिखोगे आप? Increases by 0.5%. इंक्रीजेस बाय Increases by 0.5%. ये जितना इंक्रीज हो रहा है D1 भी उतना ही इंक्रीज होगा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू. क्लियर है सभी को? Yes, sir. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. देखो इसमें बस ये अपने को ये फॉर्मूला याद होना था कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज किस पे डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड ऑन अल्फा एंड इट विल डिपेंड अपॉन योर डेल्टा टी. Whereas expansion will depend on delta L बेटा, percentage will not depend on delta L. खाली एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो डेल्टा एल कहां चले जाएगा? इधर चले जाएगा, तो दैट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल. ठीक है ना? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो बेटा, the coefficient of linear expansion, the coefficient of linear expansion alpha of the material, alpha of the material of a rod of length L naught, of length L naught varies with absolute temperature, varies with absolute temperature as alpha is equals to A into T minus B into your T square, where A and B are constants beta, where A and B are constants, where A and B are constants. First of all, the linear expansion of the rod, when heated from T1 to T2 is equals to 2 times of T1 in dash. First option is 3/2 A into T1 square minus 7B by 3 into T1 cube into initial length, that is nothing but L naught. Second one is 4A minus 7B by 3 into, this one is a T1 into your L naught. And third one is 2A into your T1 square minus 7B by 3 T1 cube into your L naught. और fourth one is none. चलो जल्दी से बताओ. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. The coefficient of linear expansion alpha of a material of a rod of length L naught, इसका लेंथ कितना है मेरे पास? L naught, which varies with absolute temperature as, यानी अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. अल्फा is equals to A into T minus B into T square, where A and B are constant. The linear expansion of the rod when heated from T1 to T2 is equals to 2 times of T1 will be equal to your how much? Is asking us to calculate the linear expansion. Linear expansion मतलब कितना बेटा? डेल्टा एल पूछ रहा है. Is asking us to calculate डेल्टा एल. डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखो और सिंप्लीफाई कर लो, आराम से निकल जाता. बोल दिया रहना अब तक आंसर, वन वर्ड आंसर है. मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, लेसर देन 60 सेकंड में करने का क्वेश्चन है. एनीवन? कितना आ रहा? डेल्टा एल पूछ रहा है बेटा. वो sir, third option, sir. थर्ड ऑप्शन आ रहा. 2 टाइम्स ऑफ योर A1 T1. थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए होंगे देखो तुम कहीं पर. देखो
करना कैसा है देखो, इसको जल्दी से बता, एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताओ, कोई बता सकता है क्या? सेकंड ऑप्शन सर। नहीं, एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू योर इनिशियल लेंथ एल नॉट है, और इसका टेम्परेचर है डेल्टा टी। डिफरेंशिएशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? dl इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू dt लिखोगे ना डिफरेंशिएशन में। तो अब देखो ये डेल्टा एल क्या है, यहाँ पर एक्सपेंशन है, so this is your expansion. Delta L will be equal to your integral of dl, so that is of your integral of your dl, so that is equals to integral of your initial limit कितनी है यहाँ पर t1 और फाइनल लिमिट कितनी है t2। अल्फा की वैल्यू कितनी दिया देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी, a इंटू टी माइनस बी टी स्क्वायर, a इंटू कैपिटल टी माइनस b इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इंटू इनिशियल लेंथ l नॉट इंटू योर dt। ए भी टेम्परेचर है, ए भी टेम्परेचर है, तो इसमें से तो एल नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना बनेगा बेटा? एक्सपेंशन ही बनेगा ना बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू एल नॉट विल बी इक्वल टू आउट, दिस वन इज इंटीग्रल, ये से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू टी इंटू योर डी टी, लिमिट्स आर फ्रॉम t1 टू योर t2 माइनस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर b इंटू टी स्क्वायर into your, this one is nothing but of your dt, limits are from your t1 to your t2, ठीक है ना। ये l नॉट जो है ना इसके लिए कॉमन है, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू योर l नॉट कॉमन है, इसमें ये कॉमन है फिर से, सो इंटीग्रल ऑफ t इंटू dt कितना बनेगा बेटा? t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाई ओवर 2, और इसका लिमिट्स कितने हैं? t1 कितना था मेरे पास यहाँ पर, t1 से t2 तक, t1 इज इक्वल्स टू t1 और t2 है 2 टाइम्स ऑफ t1 माइनस, इसमें फिर b कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इनटू dt कितना है बेटा? t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाई ओवर 3, इसका लिमिट किससे कहां तक है? t1 से लेके 2 टाइम्स ऑफ t1 तक। अब तो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन ही है कि नहीं बेटा? तो ये हो गया मेरे पास एल नॉट इंटू और ये हो गया a बाई ओवर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नथिंग बट 2t1 माइनस ऑफ योर t1। आया? क्लियर है? सर वो स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है ना। स्क्वायर सर, ये स्क्वायर। बन जाएगा 2t स्क्वायर और ये बन जाएगा t1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया b बाई 3 इंटू ये t क्यूब है तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ योर t1 क्यूब माइनस ये बन जाएगा t1 क्यूब। अब कोई बता सकता है इसका कैलकुलेशन? तो ये हो गया एल नॉट तो कॉमन मेरे पास, तो एल नॉट को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो एल नॉट तो है कॉमन यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास, ये एल नॉट तो कॉमन है, तो ये हो गया a बाई 2 इंटू ये कितना बन जाएगा बेटा? 4t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो ये बना कितना? 3t1 स्क्वायर। 3t1 स्क्वायर। आ गया अभी सभी को आंसर, माइनस ये कितना बन जाएगा बेटा? ये तो b बाई 3 है 8 इंटू ये कितना है बेटा? 8t1 8 माइनस 1 तो कितना हो गया? 7। 7। तो ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ योर t1 क्यूब। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 3 by 2 times 3 by 2 times of at1 square minus 7b by 3 times of t1 cube। आया सभी को? यस सर। क्लियर है? छोटा कैलकुलेशन था, इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, दूसरा कुछ भी नहीं लगा रहे थे हम लोग यहाँ पर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट वन? सो ये हो गया फर्स्ट वन ऑप्शन इसका आंसर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन है? साजिद कई को है? है सर। आप आते बोल के मैं आया सर एकेडमी को। आ रहा हूँ बेटा, मैं ये जरा कॉलेज की एक क्लास है 10:30 से लेके 12:30 तक, वो कर लेके जरा फ्री हो जाए के आ जाता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको याद कर रहा हूँ सर। वो कितना आ रहा नहीं आ रहा देखता हूँ मैं भी आके। आइए सर, आइए। ठीक है। आसिफ सर, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ सर, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक डाउट था, ये इंटीग्रेट कब करना रहता है अपने को जनरली? ये देखिए सर, अब जनरली देखो बेटा, अगर ये रॉड है बेटा, ये रॉड है, अगर आप इसको तोड़ना है,
अब इसको आप तोड़ना है, ऐसा तोड़ रहे हो, ऐसा तोड़ रहे हो, ऐसा तोड़ रहे हो, तो तोड़ने के बाद जो एक पार्ट बनता है ना, एक अगर बड़े बॉडी को आप तोड़ रहे हो तो आप डिफरेंशिएशन करोगे। अब एक छोटे पार्ट को अगर ऐड करना है, पूरों को ऐड करके एक बड़ी बॉडी बनाना है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब क्या? एडिशन। बेसिक लैंग्वेज में माना जाए तो ये हो गया एडिशन। और डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिवाइडिंग। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिवाइडिंग। अगर आपके पास 10 रुपए है, उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या करोगे आप? 10/2 करोगे। सो दिस इज नथिंग बट 5 बन गया। तो डिफरेंशिएशन आपको कब करना है? अगर आपके पास कोई एक बड़ी बॉडी है, अगर उसको आप कट कर रहे हो बेसिकली, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और इंटीग्रेशन कब करेंगे? अगर आपको एक छोटी बॉडी दिया, मान के चलो मैं आपको दिया 5 रुपए और बोल रहा हूं कि ऐसे 5 रुपए मैं आपको 100 दे दिया, तो पूरों को आप ऐड करोगे आप 5 + 5 + 5 + 5 + 5। अब ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना बेटा ऐड करने के लिए, समझ में आ रहा? तो ये 100 अगर 5 कॉइन्स 5 रुपीज से कॉइन्स दे दो मैं, तो अगर आप ऐड करने चलोगे तो आपको आंसर आएगा नो डाउट, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम लोग मैथ्स में एक शॉर्टकट यूज करते हैं कि पूरे 5 को अगर ऐड करना है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेसिकली। क्लियर है सर? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, आप लोगों को भी क्लियर है? इंटीग्रेशन कब Yes, लगा sir. रहे? देखो ये प्रीवियस Yes, प्रॉब्लम में हम लोग sir. इंटीग्रेशन Yes, क्यों sir. लगा रहे हैं? देखो ये प्रीवियस प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ L0 varies with absolute temperature as alpha is equal to a into t minus b into t square। अब ये बोल रहा है कि ये अल्फा जब टी पे डिपेंड कर रहा है, अगर टी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं कहां से? T1 से 2t जा रहा हूं, 3t जा रहा हूं, 4t जा रहा हूं, तो आप एक एक को आप डाल के ऐड करते जाओगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब उसको ऐड करना है, बड़ा वैल्यू लाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके। ये अली सर का ही डाउट था, बच्चों का डाउट था? बच्चों का था सर। हम सबका था। सर कब इंटीग्रेट कर रहे हैं, कब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये डिफरेंशिएशन करते हुए टाइम पे भी बहुत क्लियरली बोला था बेसिकली कि आप इंटीग्रेशन कब करोगे और डिफरेंशिएशन कब करोगे। बेसिकली इंटीग्रेशन आप जब करोगे, अगर आपको कोई छोटी बॉडी दे दिया और वो बोल रहा है कि आप ये लिमिट से ये लिमिट तक जा रहे हो, मान के चलो आपने बोला कि मैंने बोला कि आपके पास 5 है और यू आर गोइंग टू 5 लाख। अब 5 लाख तक आप 5 + 5 + 5 + ऐड नहीं करोगे ना, तो उसके लिए हम लोग एक मैथ्स में इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। बड़े टर्म को, छोटे छोटे टर्म्स को अगर बड़ा टर्म बनाना है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर बहुत बड़ा टर्म है, इसको अगर हम लोग छोटे छोटे टर्म में कट करना है या छोटा छोटा टर्म बनाना है, मेरे को इतना बड़ा कुछ जरूरत ही नहीं है। मान के चलो आपकी मेडिकल सीट है 1 करोड़ की। अब मान के चलो आपके पापा के पास 100 करोड़ से, तो क्या आप 100 करोड़ ले लोगे? बोलोगे चलो भाई अब जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर 1 करोड़ आप आराम से ले सकते हो ना, कि छोटा पार्ट हो गया 100 करोड़ में। तो ये जो छोटा पार्ट होता है ना, जब हम लोग को जो छोटी चीज से जरूरत होती है, तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जब बहुत बड़ी चीज जरूरत पड़ती है तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। जैसे हम लोग अभी नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर होते क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में 1-2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर मिला के पूरा फाइनल सिलेबस कंप्लीट करते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोल लेते हैं। So I hope roughly you got an idea. So when to use the integration and when to use the differentiation. Clear है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार ध्यान से देखो और ट्राई टू डू द क्वेश्चन। मेरे पास एक स्केल है बेसिकली, स्केल made up of copper, made up of your copper, gives correct reading, gives the correct reading at calibrated temperature, of 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलिब्रेटेड मतलब क्या? मैंने कल बोला था, जहां पर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने क्या बोला? द कॉपर स्केल measures the length of a wooden rod, the length of the wooden rod at 30 degrees centigrade to be 20 centimeter. What is the actual length?
what is the actual length of the rod? What is the actual length of the rod? Given in the problem, alpha of copper is equals to 1.6 into 10 to the power of -5 per degree centigrade. Clear है? चलो जल्दी से देखो. कितना है बेटा? $20.0064. Very good. 20.0064. कितने जनों का है? ये देखो बेटा, स्केल इज मेड एट व्हाट टेम्परेचर? स्केल जब मैं बनाया था तो कितने टेम्परेचर के पास बनाया था मैंने? टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी मेरे पास एक वुडन रॉड है, ये वुडन का एक लेंथ है बेसिकली, इसको मैं मेजर कर रहा हूँ. कौन सी टेम्परेचर के पास मेजर कर रहा हूँ? 30 सेंटीमीटर के पास. तो ऑब्वियसली ये जो स्केल रीडिंग है ना, ये तो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा, isn't it? तो ये तो एक्सपैंड हो जाएगा राइट नाउ. तो जब रीडिंग क्या आ जाएगी अपने को? ज्यादा आएगी, कम आएगी? ज्यादा. Isn't it? So at a time, how do you write the relation? मान के चलो this is initial length L naught. टेम्परेचर बढ़ने के बाद it has been come, this scale क्या है ना, scale has been come to your L. L is nothing but expanded length मान के चलो. Expanded length कैसे लिखोगे बेटा? L is equals to initial length L naught into 1 plus alpha into delta t. ये तो अपने को मालूम है कि नहीं? L is nothing but what? Expanded length या delta L मान के चलो बेसिकली. अब ट्रू रीडिंग कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से. कल मैंने आपको बताया था true reading is equals to, true reading is always equals to your scale reading ले लो अपने पास या measured value, that is nothing but of your scale reading into ये हो जाएगा 1 plus alpha into delta. True reading is equals to your scale reading into your 1 plus of your alpha into your delta t part of relation. Is that clear for everyone? तो अब यहाँ पर देखो स्केल रीडिंग कितनी है मेरे पास. स्केल रीडिंग कितनी है? स्केल की रीडिंग कितनी बता रहा है? 20 सेंटीमीटर बता रहा है. तो ये हो गया मेरे पास 20, ये हो गया इंटू 1 प्लस अल्फा वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 1.6 इंटू 10 to the power of -5 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बता? 30 minus 10, that will be equal to your 20. आया सभी को? तो ये बना कितना मेरे पास, कोई बता सकता है जल्दी से? ये बनाया मेरे पास, ये 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 120 प्लस ये हो गया 20 इंटू ये वर्क कितना बन जाएगा बेटा जल्दी से बताओ? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है मेरे पास यहाँ पर? इसका 20 हो गया, 1.6 इंटू 10 to the power of -5 इंटू यूर 20. क्लियर है? तो ये हो गया 20 प्लस ये बना कितना देखो, 16 2 जा 32. 1.6 बता 16 हो गया ना बेटा. 16 डिवाइडेड बाय यूर 10, तो ये 10 और ये 0.6 चले गया तो 16 2 जा कितना? 32. 32 प्लस ये 20 कितना 32 into 22 64. आया? Yes sir. ये हो गया 64 इंटू ये पावर निकाल रहा हूं इसमें से, तो बन जाएगा 10 to the power of -4. बना से भी को. Yes sir. तो ये कितना हो रहा है 20 प्लस इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं 64 इंटू 10 to the power of -4. तो इसको ऐड करो तो कितना बन जाएगा 20.12, ये हो गया 34 यानी 64. 20.064 सेंटीमीटर्स आ गया है कैलकुलेशन सभी को. याद देखो बेटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 120, ये हो गया 20 इंटू 1.6, यहाँ पर इंटू 20 है
तो 20 प्लस ये, और इसमें से ये 0 और ये पॉइंट निकाल दिया मैं, तो 16 16 2 जा 64 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 0 निकाल दिया तो ये 10 to the power of -4, तो हो गया 20 प्लस ये बन जाएगा 0.0064, तो इसको ऐड कर लो 20.0064 सेंटीमीटर। आया सभी को? इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला याद है, कल ही बोला था मैंने आप लोगों को, ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू योर मेजर्ड वैल्यू प्लस ऑफ योर डेल्टा एल, प्लस ऑफ योर डेल्टा एल। तो मेजर्ड वैल्यू की मैंने डायरेक्टली रीडिंग लिख दी, दैट इज स्केल रीडिंग इनटू योर 1 प्लस ऑफ योर अल्फा इनटू योर डेल्टा टी। ठीक है? Yes, sir. और एक ऐसा वाला एक क्वेश्चन एक बार जल्दी से करो, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव मी द आंसर करेक्टली। मेरे पास एक मेटालिक स्केल है, we have got a metallic scale made up of steel, gives correct reading at 10 degrees centigrade. Okay, alpha of steel is equals to 0.00002 per degree centigrade. ठीक है? The scale reads the length of wooden rod to be 77 centimeter at 37 degrees centigrade. So what is the correct length of the rod? बोलना सभी लोग, एक जना नहीं बोलना, सभी लोग बोलना। What is the correct length of the rod at 37 degrees centigrade? Sure. Same ditto like previous question. Okay. 77.4167. Very good. 77 point something you will get the answer. आया सभी को? Yes, sir. क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी से? लास्ट वाला है, ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू योर L0 into 1 plus alpha into delta t. इनिशियल लेंथ कितना मेजर कर रहा था वो? 77 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 77 into 1 plus अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.000002 into टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 37 minus 10, तो ये हो गया कितना? 27। ऐसे भी क्लियर? Yes, कितना आ sir. रहा बेटा सबको बताओ? 77.4. ऑर्डर करे जब फोन का वर्ड ऑर्डर Unmute yourself. बातें सुनाई दे रहे हैं यहाँ तक। So what is an answer for this one बेटा? 77.04 सेंटीमीटर्स, इतना आंसर आएगा। क्लियर है? चलो, Yes, sir. ये क्वेश्चन भी आप लोग को करना है, छोटा क्वेश्चन है। A pendulum clock
clock is 5 seconds fast, 5 seconds fast at a temperature of 15 degrees centigrade and 10 seconds slow, 10 seconds slow at a temperature of 30 degrees centigrade. At what temperature does it give the correct time? Does it give the correct time? Option number 1, 18 degrees centigrade. Option number 2, 20 degrees centigrade. Option number 3, 22 degrees centigrade. And option number 4, 25 degrees centigrade. चलो बताओ जल्दी से. 20 degrees centigrade. आया सभी को? The pendulum clock is 5 seconds fast at temperature. इससे पहले करे थे या हम लोग आप अभी कर रहे हैं बेटा? Yes sir. इससे पहले करे थे या अभी कर रहे हो? देखो बेटा, ये pendulum clock is 5 seconds Sir, model fast. करे थे. अच्छा फाइन, वेरी गुड. सो ये 5 सेकेंड्स फास्ट है. तो फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से. डेल्टा टी इज इक्वल टू योर हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टीटा इंटू योर टी. याद है ना सभी को? डेल्टा टी मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम. स्मॉल टी इज ऑल्सो टाइम. डेल्टा टीटा इज टेम्परेचर. इनिशियली 5 सेकेंड्स फास्ट है यानी पॉजिटिव +5 इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास हाफ इंटू अल्फा इंटू, तो टेम्परेचर कितना था 15 और ये कितना है 13. तो ये हो जाएगा हायर टेम्परेचर आएगा समवेट थीटा माइनस ऑफ योर 15 into 86,400 seconds. So next one it is losing. Losing मतलब 10 seconds. Minus 10 is equals to half into alpha into ये हो गया थीटा माइनस ऑफ योर 30 into 86,400 seconds. तो अब दोनों को सॉल्व करो राइट नाउ. इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं 5 1 जा 5 2 जा यानी ये हो जाएगा -2. दोनों को डिवाइड कर रहा हूं बेटा. सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन 5 1 जा 5 2 जा तो ये हो गया -2 that is equals to half alpha ये वाला और ये वाला gets cancel. So ये हो गया theta minus 30 divided by theta minus of your 15 dividing 2 by your 1. तो ये कितना बनेगा जल्दी से बताओ. ये हो गया theta minus of your 30 is equals to minus of your 2 theta minus of minus ये बन गया plus, so it is nothing but +15. ठीक है ना. पूरे थीटा से एक जगह ले लो, ये माइनस से इधर आ जाएगा. सो दिस इज 3 थीटा. ये माइनस से इधर चले जाएगा तो 30 प्लस ऑफ योर 15 कितना हो जाएगा 45 होता है ना. -30 ये कितना है 15 2 सा कितना 15 2 सा करना ना सर. ऊपर लिए तो 2 थीटा प्लस 30. अरे सॉरी ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर गलत कर दिया ना. तो यहाँ पर 15 into 2 कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 30 minus 2 theta plus of 30 because 2 into 15 तो ये माइनस टर्म इधर आ जाएगा तो ये 3 थीटा हो जाएगा. तो ये 30 है, ये माइनस इधर जाएगा तो ये +30 तो ये बन गया मेरे पास 60. तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 60 डिवाइडेड बाय 3. सो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? मैंने ये आप लोगों को लिखना बताया था कैसा लिखना है. टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज के कंडीशंस पे लिखा है तो एक बार आप प्रेफर कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज. ठीक है. चलो नाउ दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, the length of the steel rod exceeds, ये श्रीजत ने मेटल में आपको डायरेक्ट शॉर्टकटली बना के रखा हुआ है. अगर आप लोग मेटल पढ़े तो ये कर सकते हो बेसिकली. The length of the steel rod exceeds that of a brass rod by 5 centimeter if the difference, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो बेटा. If the difference in their lengths remains same at all temperatures, then the length of brass rod will be
dash. Alpha of iron is equals to alpha of your brass. Sorry, alpha of iron लिख लेता हूँ पहले. Alpha of your iron is 12 into 10 to the power of -6 per degree centigrade, and alpha of your brass is equals to 18 into 10 to the power of -6 per degree centigrade. चलो try to do it out बेटा. First option है इसका 15 centimeter, second option है 5 centimeter, third option है 10 75. centimeter, and fourth option is 2 centimeters. The length of the steel rod exceeds that of the brass rod by 5 centimeter. ठीक है ना? The length of the steel rod exceeds that of the brass rod by 5 centimeter if the difference in their length remains the same at all temperature. If the difference in their length will always remain same at the same temperature part deflation, then the length of the brass rod will be equal to your how much? आया क्वेश्चन अच्छी तरह समझिए, बट अच्छा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन. ये आपको आपके मटेरियल में सॉल्व करा हुआ 15 है, sir. कॉन्सेप्ट है. 15. आया? नो, लेंथ ऑफ ब्रश 15 है. नहीं बेटा. Ten. हाँ, 10 इज द आंसर. कैसा है बेटा? सर L2 minus L1 X है, so delta L सेम है बोले तो L1 alpha T1 equals L2 alpha L2 alpha 2 T2 है. तो उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो L2 minus L1 में आ जाता सर. वेरी गुड. तो एक्चुअली बोल क्या रहा था ये बताओ मेरे को जल्दी से. डेल्टा T सेम है सर, so L1 alpha 1 Length of equals the L2 steel alpha 2. rod exceeds that of the brass rod by 5 centimeter. यानी length of the steel exceeds मतलब क्या, ये बड़ा है ना. Length of the steel is length of the brass से तो बड़ा है. कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर बड़ा हुआ. तो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा सभी लोग, लेंथ ऑफ द स्टील माइनस लेंथ ऑफ द ब्रॉस इज इक्वल से कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर. इतना बड़ा है. अब उसने क्या बोला, अगर डिफरेंस इन द लेंथ, यानी जो डिफरेंस था ना 5 सेंटीमीटर का, वो कभी भी कांस्टेंट है. डिफरेंस इन द लेंथ रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर, यानी आप इसको कुछ टेम्परेचर पे हीट करें तो when we heat it to some temperature, तो दोनों के लेंथ तो बढ़ रहे हैं ना बेटा. ls डैश हो जाएगा ये, और l ऑफ ब्रॉस हो जाएगा, जब ये डिफरेंस जो है ना फिर से सेम है. क्लियर है? तो ये दोनों जो है ना सेम है कंडीशन में, यानी लेंथ ऑफ द स्टील minus length of the brass is equals to length of the steel as length of the brass dash. आया समझ में ये? यानी initial length will be equal to your final length की कंडीशन बोल रहा हूं मैं बेसिकली. क्लियर है? यानी this one is L1 alpha 1 into your delta T same temperature is equals to L2 alpha 2 into your same temperature delta T. Delta T gets cancelled, so it is L1 alpha 1 is equals to your L2 into your alpha 2. मतलब क्या? लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ब्रॉस इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ ब्रॉस डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ स्टील. ये मतलब समझ में आया सभी को? दोनों का एक्सपेंशन सेम है बेटा. एक्सपेंशन ऑफ द इनिशियल इज इक्वल्स एक्सपेंशन ऑफ द फाइनल. फाइनल मान के चलो मैं L2 ले रहा हूं, इनिशियल में L1 ले रहा हूं, तो LS बाय योर L ऑफ ब्रॉस इज इक्वल्स टू हाउ मच वर्नी? अल्फा ऑफ ब्रॉस बाय अल्फा ऑफ योर स्टील. क्लियर है? यस सर. तो
अब देखो अल्फा ऑफ लेंथ ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ब्रॉस इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ ब्रॉस कितना दिया? अल्फा ऑफ ब्रॉस इज 18 into 10 to the power of -6. दिस वन इज 18 into 10 to the power of -6 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 12. सो दिस वन इज योर 12 into 10 to the power of -6. ये -6 चले गया, ये कितने में जाएगा बेटा? 6 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 2 यानी लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रॉस इज इक्वल से कितना है मेरे पास? 3/2. सो आई कैन राइट हियर लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ योर ब्रॉस. लिख सकता हूं ऐसा मैं? सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया मुझे मान के चलो इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे चाहिए क्या यहाँ पर? लेंथ ऑफ ब्रॉस, यानी लेंथ ऑफ ब्रॉस चाहिए. लेंथ ऑफ द स्टील तो आ गया ना मेरे पास. लेंथ ऑफ स्टील इज हाउ मच? 3/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रॉस. सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन योर 1, लेंथ ऑफ योर क्या? स्टील. लेंथ ऑफ द स्टील माइनस लेंथ ऑफ द ब्रॉस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर था, तो लेंथ ऑफ स्टील कितना है? 3/2. दिस वन इज 3/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्रॉस माइनस लेंथ ऑफ ब्रॉस इज इक्वल्स टू 5. तो ये हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ ब्रॉस इज इक्वल्स टू 5. तो लेंथ ऑफ ब्रॉस निकालो इसमें से कितना आ रहा है देखो सभी को. 3/2 माइनस 1 कितना? 3/2 माइनस 1 कितना? 1/2. 1/2. 1/2 ये 2 इधर चले गए तो कितना बन जाएगा? 10. 10. लेंथ ऑफ ब्रॉस इज इक्वल से कितना बना? 10 सेंटीमीटर्स. बना सभी को? Yes sir. Yes sir. वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल बेटा. ये बच्चे क्वेश्चन को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं. ऐसे वाले मॉडल्स कंपलसरी यू नीड टू रिमेंबर दैट, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक गिवन कंडीशन. क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. एक छोटा सा एप्लीकेशन ले लेते हैं बेटा. अभी ये फर्स्ट ईयर वालों को तो आइडिया नहीं रहता, बट ओनली फॉर सेकंड ईयर लॉन्ग टर्म के बच्चे आप लोग एक बार ध्यान रख लो. You know that moment of inertia of a body is given by the formula I is equals to m into your r square. है कि नहीं बेटा? Moment of inertia of your particle, isn't it? Moment of inertia of a particle कितना है? I is equals to m into your r square. और moment of inertia of ring लिख लो. Moment of inertia of your ring लिख लो, या moment of inertia of this one is also ring is also mr square. Moment of inertia of a disk कितना है बेटा? Moment of inertia of the disk is equals to m into r square divided by 2. ठीक है ना? Yes sir. तो कुछ भी ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. Moment of inertia of your solid sphere कितना है? Moment of inertia of your solid sphere is equals to 2/5 into mr square, अगर आप लोग को याद हो तो. Moment of inertia of your hollow sphere कितना है? Moment of inertia of an hollow sphere is equals to 2/3 into m into your r square. तो अब ये कुछ भी हो जाए बेसिकली, इसके हम लोग लेना देना नहीं है. अब यहाँ पर देखो I is equals to m into your r square को हम लोग एरर में कैसे लिखते हैं? दिस वन इज डेल्टा I by your I is equals to m कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो कितना बनेगा? 2 into डेल्टा r by your r. ठीक है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन लिख रहे हो बेसिकली एरर में, तो एरर में कैसे लिखोगे? जो पावर होगा उससे मल्टीप्लाई करो. एरर इज नथिंग बट डेल्टा आर बाई यूर आर, यानी डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल्स टू 2 into डेल्टा आर बाई यूर आर लिख सकते हैं इसको. या इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बिकॉज आर इज नथिंग बट रेडियस ओनली ना. इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर लिख रहे हो तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा आई बाई यूर आई इज इक्वल्स टू 2 into डेल्टा एल बाई एल लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. डेल्टा एल बाई एल कैसा होगा बताओ, कोई बता सकता है क्या? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा थीटा है ना अपने पास. तो Yes, sir. डेल्टा एल बाई एल कितना आया? डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 2 times ऑफ अल्फा इंटू योर डेल्टा थीटा हो गया. Yes sir. क्लियर है? Yes. Yes sir. Isn't it? यानी अगर आप इसको भी लोगे तो वही आंसर आएगा ना बेटा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को भी अगर आप लोगे तो आपको यही आंसर आएगा, क्योंकि m/2 तो कांस्टेंट होगा, इसमें भी 2/5 भी कांस्टेंट होगा, इसमें भी 2/3 कांस्टेंट होगा. तो एवरीवेयर इट इज योर r स्क्वायर. चाहे कोई भी बॉडी को आप डिफरेंशिएट करो, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना है तो डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. Isn't it? ना चलो ये और एक भी है देखो, इलास्टिसिटी चैप्टर में होता है आप लोग को, ओनली फॉर सेकंड ईयर एंड द लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स. फर्स्ट ईयर के बच्चे आप लोग लाइक ले लो, वो जब चैप्टर शुरू होगा, जब वी कैन डू इट आउट. हम लोग को एक पॉइंटिकल मॉड्यूल में है कहना, व्हाट यू कॉल दैट इलास्टिसिटी. के इज नोन एज व्हाट बेटा? बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट बेटा?
वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। याद है सभी को? Yes, sir. छोटा सा फॉर्मूला इन Yes, sir. इलास्टिसिटी चैप्टर। तो K इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा? प्रेशर। प्रेशर वॉल्यूम Pressure, स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं? delta V by चेंज V. इन वॉल्यूम delta बाय V by ओरिजिनल V. वॉल्यूम। ठीक है ना? तो अगर ये मैं इधर ले लूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा? डेल्टा V बाय योर V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर ये कितना बन जाएगा? P by K। A minus sign indicates only that volume is decreasing, nothing to do with the calculation beta. Is that clear? Yes, sir. Yes, In sir. terms of magnitude लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? Delta V by over V is equals to ये बन जाएगा P by K। और डेल्टा V by V कैसे लिखो? कोई बता सकता है गामा क्या? डेल्टा T. Change in volume by original volume will be equal to how much बेटा? ये गामा का फॉर्मूला अपने को मालूम है। गामा is equals to delta V by V into your delta T। ठीक है ना? So delta V by V can be written as of your gamma into your delta T is equals to your P by your K. So rise in temperature can be represented by the formula delta T is equals to P by K into your gamma. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं basically. Is it clear for everyone? Yes, sir. Sir. Isn't it? So these are the some of the basic conditions which you need to remember while doing the problems in comparing for the given conditions part. कभी-कभी अगर गामा वैल्यू नहीं दिया तो अल्फा वैल्यू में कैसे लिखोगे? This will become for me delta T is equals to P by K into gamma is equals to how much बेटा? 3 times alpha. of your alpha. Yes, sir. और else अगर हमने को बीटा लिखना है, बीटा is equals to how much बेटा? 2 by 3 गामा. ठीक है ना? तो अल्फा कैसे लिख सकता हूं मैं? बीटा बाई 2। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर इज इक्वल्स टू प्रेशर बाय के इंटू 3 इंटू अल्फा। इसमें से अल्फा निकालो, अल्फा इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं? बीटा बाई 2। तो ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, Isn't sir. it? So these are the some of the basic terminologies which you should remember while doing the problems related to your thermal expansions part of relation. Clear है सभी को? कल मैंने थोड़े प्रॉब्लम्स आप लोग को भेजा था, कोई भी नहीं Yes, करे? sir. करा सर मैं. कितने जने? 1-2 बच्चे आंसर भेजे, बाकी के लोग सब जने भी सो रहे सर का है। हाँ, कल मैंने 4-10 क्वेश्चंस कुछ भेजा था। मेटल के प्रॉब्लम्स हो गए चैतन्य के? प्रॉब्लम्स बेटा Yes, sir. हो गए. पूरे? सर एक्सरसाइज 3 के डाउट्स है. अभी तो एक्सरसाइज 3 में के क्वेश्चंस थे मैंने जो आप लोग को भेजे थे। सर वो पूरे एक्सरसाइज 2 के थे. लेवल नई मेटल में के एक्सरसाइज नंबर 2 में है बेटा, पुरानी में लेवल 3 में है वो पूरे। और खाली कैलकुलेशन कंडीशंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कल कोई भी नहीं करे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसलिए मैंने आप लोग को अभी बता दिया यहाँ पर। आई इज इक्वल टू m into r स्क्वायर करना है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसा कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है? यस सर. अब ऑलमोस्ट ऑल पूरे वैसे ही मॉडल्स है बेटा, थोड़े थियरी क्वेश्चंस है वो आप लोग जरा देख लो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर यू। थर्मल एक्सपेंशन में 99.99% पूरे मॉडल्स मैंने करवा दिया। अगर आप एक बार मेटल खत्म कर लोगे तो पूरे के पूरे वर्कआउट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बेसिकली। और प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन ऑल द वर्कआउट एग्जांपल्स ऑफ योर मटेरियल फर्स्ट, वो पूरे परफेक्टली करो, देन यू ट्राई टू गो फॉर एक्सरसाइज। आज के हाल में किसी हाल में भी आप एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के पूरे न्यूमेरिकल्स और मेटल खत्म कर लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी आप लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मेटल में के जितने हैं उतने खत्म कर दो बेसिकली। ठीक है? एक्सपेंशन में कुछ किसी को बचा हुआ है, कोई कुछ टॉपिक नहीं बोला, कुछ आइडिया है तो यू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट वन बेटा। याद है किसी को कोई टॉपिक मैंने छोड़ा है? हाँ बेटा, जहां तक को मेरे को मालूम है मैंने तो पूरे मॉडल्स करवा दिया। कुछ छूटा हुआ है तो देख लो एंड यू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट वन। सर कैलोरीमेट्री के थोड़े प्रॉब्लम्स कराइए था ना सर.
का कराया मैं कैलोरीमेट्री की प्रॉब्लम आप लोग को? हाँ ठीक है, चलो थोड़े करवा देता हूँ। ग्राफ का क्वेश्चन करो। यस सर। और सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप ग्राफ्स नहीं कराए थे सर? आज देख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा एक बार सभी लोग। Two substances A and B of equal mass, A and B of equal mass are heated by uniform rate, of 6 calorie per second, under similar conditions. First of all, a graph between temperature and time, is shown in figure. First of all, ratio of heat absorbed, HA by over HB by them for complete fusion is, this is the graph given for me. This is your y-axis, this is your x-axis, and there is a graph for this one like this. One graph is like this and another graph is like this, and this both of them are at your same temperature, and this goes like this, and from here this goes like this, and this one is, this goes like this, and this goes like this, and another one is somewhere here, and this one is at some temperature like this, and this one is at some temperature like this. Then it will become constant like this, then it is going for this one, and this one is somewhere here like this, this one is somewhere like this here. Okay, and I'll write the values for this one. Here there is a temperature beta. On y-axis we are taking temperature, on x-axis we are taking time. ठीक है, and time is taken in terms of seconds. तो ये टाइम है मेरे पास 1, और ये है मेरे पास 3, और ये है मेरे पास 5, और ये है मेरे पास 6, then 7, go on like this. And the temperature for this one, which is at remaining constant for this one, ये हो गया मेरे पास 20, then this one is right now for me 60, then उसके बाद 70, उसके बाद 80, then उसके बाद 100. ठीक है ना, तो बीच में somewhere here there will be your 40. This is a given graph beta. I'll give the options for this one. First option is 9 by 4, second option is 4 by 9, third option is 8 by 5, and fourth option is 5 by 8. चलो बताओ जल्दी से। This is your A and this one is your B beta. Two substances A and B of equal mass, दोनों का मास सेम है, यानी इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, are heated by a uniform rate of 6 calorie per second under the similar condition. A graph between temperature and time is shown in the figure. Ratio of the heat absorbed by HA by HB for the complete fusion will be equal to how much? फॉर्मूला याद है, भूल गए? S equals R by M है सर, M slope. तो हीट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? Q equals ms delta T, उससे S मालूम हो जाता सर ये फॉर्मूले से. फिर M
करे तो आ जाता। सेम मेटेरियल है ना बेटा, सेम masses है. Two substances A and B of equal masses are heated by uniform rate of 6 calorie per second under similar conditions. A graph drawn between temperature and time. Ratio of the heat absorbed यानी HA by HB will be equal to your how much? कौन सा ऑप्शन लिखोगे? जल्दी करो. Let me see how many of you will give me the answer for this one. इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने एक दो प्रॉब्लम आप लोगों को करवाया था. रेशियो ऑफ हीट ऑब्जर्व हो तो क्या बेटा? रेशियो ऑफ हीट ऑब्जर्व देखो, Q is equals to M into L हम लोग को मालूम है, isn't it? Anything 4/9. divided by 10. Q is equals to how much for me? Rate R into dt is equals to your M into your L बोल रहा था. तो L कैसे लिखोगे? L is equals to how much for me? R into temperature difference T2 minus T1 divided by mass. ये फॉर्मूला याद नहीं है? Latent heat is equals to how much for me? Latent heat H is nothing but what? Latent heat of absorbed. आइस फ्यूजन क्या करेगा? हीट ऑब्जर्व करेगा कि या लिबरेट करेगा? फ्यूजन है ना बेटा. कंप्लीट फ्यूजन के लिए कितना हो जाएगा? लेटेंट हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर HA डिवाइडेड बाय योर HB. तो HA की वैल्यू बताओ पहले. HA इज इक्वल टू, दोनों का मासेस तो सेम है तो रेशियो में तो चेंज चले जाएगा. R की वैल्यू कितनी दे रखा है? 6 इनटू टेंपरेचर डिफरेंस कितना है? 5 से लेके 1 तक. उसी तरह से HB इसका रेट कितना है बेटा? Q इनटू टेंपरेचर कितना है बता सकता है कोई? ये मैंने 5 कैसे ले लिया बता कोई? टेंपरेचर इज नथिंग बट इन द ग्राफ ही हैज गिवन फॉर मी 5. क्लियर है? Yes, sir. ये 6 नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट जो आ रहा है यहाँ पर ये समवेयर इन बिटवीन है और यहाँ पर 6 है. सॉरी, अब आ जाएगा. तो ये 3 ये 5 और ये वाला 6. H के लिए, A के लिए टाइम कितना है? टेम्परेचर टाइम कितना है? 5. सो इट इज 5 और यहाँ पर 1. सो 5 minus 1, तो ये हो गया 5 minus 1. HB के लिए रेट इज गिवन फॉर मी 6 सेम. अब यहाँ पर देखो ये कितना है? 5 और 6 के बीच में. ठीक है, ये 5 पे है और ये 6 पे, यानी ये कितना हो जाएगा? 5.5. दोनों के बीच में है ना, तो दोनों के बीच में है तो 5.5 फॉर द B, यानी H ऑफ B विल बी इक्वल टू 6. ये हो गया 5.5 और ये हो गया माइनस कितना आ रहा देखो, ये हो गया 3. ये कांस्टेंट यहां से यहां तक कितना आ रहा? फ्यूजन के लिए तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 3. अब देखो कितना आ रहा? HA डिवाइडेड बाय योर HB इज इक्वल्स टू, ये वाला चले गया, 3 minus 1 that is nothing but 4 divided by 5.5 minus 3 कितना? 2.5. 2.5 मतलब कितना बन जाएगा? 8/5 होता है ना? 8/5. इसमें कौन सा है? 8/5. थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes sir. Isn't it? ग्राफ वाले क्वेश्चंस भूल गए जब भी तुम लोग. चलो एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से. The temperature of 100 gram of water
100 gram of water is to be raised from 24 degrees centigrade to 90 degrees centigrade by adding steam to it. Calculate the mass of the steam. Required for this purpose. चलो जल्दी से बताओ. The temperature of 100 grams of water is to be raised from 24 to 90. मेरे पास 100 grams of water है, उसका टेम्परेचर में 24 से 90 डिग्रीज को रेज करना है. By adding what? Steam, यानी ठंडे पानी को मैं थोड़ा गर्म पानी मिला रहा हूं, so that the temperature is raising from 24 to 60. तो कितना mass of the steam मुझे ऐड करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं. जल्दी से बोलो. अगर हॉट वाटर इसको ऐड करोगे तो इट विल लूज ना. So heat released by steam must be equal to heat absorbed by water. होता है ना. तो ये कहां से कहां तक जाएगा बताओ. Steam will convert from M1 into your L of steam plus M1, तो ये water पे आ जाएगा. specific heat into 100 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड को आना है water पे. That is equals to a mass of water है M2, specific heat of this one is N, this one is 90, ये आ रहा है 24 से 90 को आ रहा है basically. तो ये बना कितना बेटा. latent heat of the steam कितना है 540. this one is 540 into your M1 plus ये बन जाएगा मुझे 100 minus 90 is nothing but 10. specific heat दोनों जगह cancel हो जाएगा. so this one is of your 100 minus 10 is 10 times of your M1 is equals to 90 minus 24 कितना बेटा 66 into your M2. ये हो गया 66 times of your M2. ठीक है ना. M2 कितना है मेरे पास. M2 कितना है 100 grams of water, यानी ये हो गया 66 into your 100. ये 540 plus 10 कितना 550 times of your M1. तो M1 कितना बना जल्दी से बताओ. so M1 is equals to 66 into your 100 divided by 550. ये वाला चले गया. देखो सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा. ट्वेल्व ग्राम्स आया सभी को. Yes sir. पक्का. Yes sir. ठीक है. थोड़ा मैं क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ, आप लोग जरा कर लो, अभी टाइम हुआ, मेरे को भी क्लास जाना है. So 2-3 questions I'll give you fastly. You try to do them, whether you can see whether you will get them or not. 200 gram of ice at minus 40 degrees centigrade is mixed with 200 grams of water at 50 degrees centigrade. Find the temperature and contents of the resulting mixture. ठीक है ना. और सेकेंड क्वेश्चन है 50 grams of water at 10 degrees centigrade is mixed with 200 gram of ice at minus 80 degrees centigrade. Find the temperature and contents of the resulting mixture. ठीक है ना, कर लोगे. यस सर कर लेते हैं. ओके. तो फाइनल मिक्सचर कितना होना चाहिए, यानी कितना वाटर कितना स्टीम है, या टोटल मिक्सचर कितना है, वो वाले अपने को फाइंड आउट करना है बेसिकली, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. चलो टेक केयर बेटा आप लोग. अभी टेकिंग केयर. बाय. Thank you sir. बाय बेटा.